Hello, everyone. So, today we delve into a topic that intersects ancient wisdom and modern health: diabetes and Ayurveda. In a world where chronic diseases are on the rise, understanding alternative approaches to managing conditions like diabetes becomes crucial. Today, we will explore the time honored principles of Ayurveda and its relevance in diabetes management. Ayurveda recognizes diabetes as madhumeha, a condition characterized by an imbalance in the body's doshas, particularly the kapha and pitta dosha. According to the Ayurvedic principles, an imbalance in these doshas can affect the metabolism of glucose, leading to elevated blood sugar levels. To help us understand diabetes and its relevance with Ayurveda, we have with us today celebrated Ayurvedic doctor, Dr. Hari Mohan Chandola. So, Professor Dr. Hari Mohan Chandola is the chairman of three distinguished Ayurvedic committees. He is a doctor of medicine in Ayurveda with a PhD in Ayurveda and a diploma in yoga from Banaras Hindu University, the Research Committee and the Institutional Ethics Committee at Uttarakhand Ayurveda University in Dehradun. Doctor Chandola was previously employed by the government of the National Capital Territory of Delhi as the Director Principal of CH Brahma Prakash Ayurved Charak Sanstha. In addition, he served as the hospital director and professor at Uttaranchal Ayurvedic College and Hospital of Rajpur Road in Dehradun, as well as the head of the IPGT and RA department of Gujarat Ayurveda University in Jamnagar. Dr. Chandola served as an independent consultant at Imami Group from 2018 to 2021 and has held prominent leadership roles, including chairman, coordinator, and nodal officer at several prestigious research centers. We welcome you, Doctor. Thank you. Namaskar. So, yeah. So, the first question for you, Doctor, is how does Ayurveda approach blood sugar management and which dosha is related to blood sugar? See, when we talk about the blood sugar management, the disturbance of the blood sugar is very elaborately discussed under the chapter of Prameha. And terminology Prameha and Madhumeha both are referred for this diabetes mellitus, where we find the disturbance in the blood glucose level. Basically, the kapha dosha is involved in the pathophysiology of this disease. But with advancing the lesion, there is a kshaya of kapha and pitta gets lead, and then it precipitates pittach prameha. Ultimately, there is a kshaya of kapha and pitta both, and vata gets lead, and then it precipitates vataj prameha. So, in all the three doshas are involved, which precipitate kaphaja prameha, pittach prameha, and vataj prameha. 10 dushyas are also involved: Ras, Rakt, Mans, Med, Majja, Shukra, Ambu, Lasika, Vasa, and Oj. So, disturbance of 10 dushyas and 3 doshas leads to the disturbance of not only the blood glucose level, rather, fat metabolism is also disturbed. So, there is a problem of metadushti, that is dyslipidemia, and carbohydrate metabolism disturbance leads to blood glucose disturbance. So, the disease prameha as a whole is the root cause which leads to the problem related to the blood glucose level. Got it, Doctor. So, my next question to you would be: can Ayurveda treat blood sugar? Ayurveda treats the disease as a whole. We talk about Roga Pariksha and Rogi Pariksha. So, apart from the disease, the patient is also treated. And then we take care of the disturbance of fat metabolism and carbohydrate metabolism. So, not only blood sugar care is taken, rather, the disturbed lipid profile, which ultimately leads to the disturbance of blood glucose level, that is also taken care of. So, Ayurveda offers the treatment for the blood sugar disturbance. There is no doubt. Definitely.
Are there any specific herbs used in Ayurveda for blood sugar? Number of herbs, like guduchi, the Gilotinospora cordifolia, then karela, trifla, amla, saptarangi, that is Salacia, and Meshashringi or Gudmar, that is also known as Madhunashini, Methi, number of drugs, number of herbs, Daru Haridra, Chirayata. So there is a series of drugs which are referred in the literature. Vijayasar, Pterocarpus marsupium, Dalchini, Tejpatra, Cinnamon tamal, even garlic, a very good, it also comes under kitchen spices, and Dalchini also comes under kitchen spices, Haldi, turmeric. So all have proven action on this blood sugar disturbance. Number of herbs are there. Definitely. Jamun, So, Jamun, yes, very common Jamun. Jamun Karela, very famous. Nisha Haridra, Amalki, and this turmeric, well known effect. So, number of herbs referred in the Ayurvedic literature. got it, doctor. So, is it not possible to procure herbs, or can we buy OTC medicines, and from where? First of all, I would like to suggest, if in the season the herbs are available as a fresh, so the best thing is to use herb in a fresh condition. But after the season is over, then it is very difficult to get the herb in fresh. So on OTC counter, these are available. You can go for jandu.com. Prime Minister talks about digital India. So online, digitally, you can procure all these herbs which have proven anti-diabetic property through jandu.com. There is no problem. Definitely. So, my next question to you would be, what are the Mhm. critical herbs that we need to consume and how to consume? We can consume herbs in the powder form, in the tablet form. We can prepare fresh decoction of the herbs. And nowadays in Ayurvedic literature, Asav and Arist formulation are also recommended. So when there is not possible to carry the decoction raw form, so Asav and Arist based formulation can also be taken. And as I told you, that there was a time when Jambu Phalasa was very commonly available. Now all these formulation are available in Asav and Arist base also. So these herbs act through different mode of action. Say for example, Vijasar. When we use it in decoction, it has shown insulin releasing action. It also helps when the study was carried out on alcoholic extract of Pterocarpus marsupium. It shows the regenerative pattern in the beta cell of the pancreas. Similarly, Guduchi, Tinospora cordifolia, this has also shown on streptozotocin induced model the regenerative pattern in the beta cell. Karela has also shown it hampered the absorption of the glucose from the intestine. It increases the insulin sensitivity, and it also help in the taking care of the insulin resistance. Similarly, Meshashringi or Madhunashini, it is also known as Gudmar. When you put it on your tongue, then sweet taste is gone. It also help in the regeneration of beta cell. So all these herbs, either they hamper the absorption of glucose from intestine, or they take care of the insulin resistance. They also help in releasing the insulin secretion from the beta cell. They also help in the regeneration. So different herbs have different mode of action, and lot of work has been done clinically and experimentally. Cinnamomum tamal तेज पत्र जो हम पुलाव में भी यूज करते हैं, इसका भी काफी स्टडी इंसुलिन के ऊपर हुआ है. And through radio immunoassay technique, the action is proven that it stimulates the release of insulin from the beta cell. So in that way, through different mode of action, these herbs work.
जामुन के ऊपर बहुत काम हुआ है, जामुन की गुठली का पाउडर, वो भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ डायबिटीज उसमें बहुत हेल्प करता है। करेले का आप जब सब्जी यूज करते हैं तो बीज मत फेंकिए, उसके बीज में जो है ये एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल है। सो करेले का बीज जो है दैट इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल फॉर इंसुलिन रिलीजिंग एक्शन। इसकी शेप भी बिल्कुल पेंक्रियास जैसी है। आंवला, आंवला विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। सो जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, हरड़ बहेड़ा आंवला विच इज कम्बाइंडली नोन एज त्रिफला, इस पे भी बहुत स्टडीज हुई है। त्रिफला भी ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी हर्ब है। मसालों में देखिए तो काली मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हींग है, मेथी है, ये सब का, दालचीनी है, और तेजपत्र की तो बात मैंने अभी आपसे कही। तो ये मसाले भी सब ब्लड शुगर मैनेजमेंट में काफ़ी इनके ऊपर वर्क हुआ है। सब्जियों की हम बात करें तो आप देखेंगे कि चचिंडा जिसे स्नेक गाउट कहते हैं, एंड अदरक, इसके ऊपर भी काफ़ी ब्लड शुगर को लेकर के काम हुआ है, एंड दे हैव आल्सो शोन वेरी गुड एक्टिविटी। फलों की बात करें तो अमरूद है, जामुन है, एप्पल है, अनार है, दीज आर गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि खाने पीने में हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और जिनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो, तो वो ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। Definitely, doctor. So my next question to you would be, how does these Ayurvedic medicines address lifestyle changes for blood pressure, like such as frequent urination, thirst, hunger, or fatigue? Now you see this frequent urination. The urination is in a frequent manner and in excessive quantity. So this excessive urination, fatigue, extreme thirst, and burning hand and feet syndrome, all these are the symptom complex of diabetes. When there is a loss of water, then there is an extreme thirst also. And when there is extreme thirst, naturally one has to take more water. So it is vice versa. So in that way, all these lifestyle related problems are properly addressed with the administration of these anti-diabetic herbs, and they act through their rasa, guna, virya, and vipak. That is called Ayurvedic pharmacodynamics. अब इसमें जो अधिकतर एंटी डायबिटिक हर्ब्स हैं, आइदर दे आर कषाय रस प्रधान, दैट इज एस्ट्रिंजेंट, और कटु, दैट इज पंजेंट, और तिक्त, दैट इज बिटर टेस्ट. सो दे आर वर्किंग थ्रू देयर रस, गुण, वीर्य एंड विपाक. सो देन कषाय होल्ड्स द वाटर कंटेंट. तो इसमें होता क्या है कि एक तो मेद का डिस्टर्बेंस बहुत है, डिसलिपिडीमिया. So many of the herbs, they take care of the cholesterol and triglyceride. Also इसमें क्या होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो कम हो जाता है, और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है. तो ये जितनी भी हर्ब्स हैं, ये ब्लड शुगर के साथ साथ ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके चलते ये डिसलिपिडीमिया हो रहा है, उसका भी ये केयर करती हैं through their रस, गुण एंड वीर्य विपाक. एंड लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन. मेथी की हम बात करते हैं तो मेथी में अनेक एल्कलॉइड ऐसे हैं जिनका ब्लड शुगर के ऊपर एक्शन है, और कुछ ऐसे हैं जिनका डिसलिपिडीमिया पे एक्शन है. इसी तरीके से ये जो सेलेसिया है, सेलेसिया की 100 स्पीशीज हैं, लेकिन इस भारत में जो है ये ओब्लोंगा एंड रेटिकुलेटा. तो सेलेसिया जो है ये भी डिसलिपिडीमिया, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, और साथ में जो आपने अभी ये इन सिम्टम्स की बात करी, इसमें लीवर और किडनी का डिस्टर्बेंस भी लेटर ऑन होता है. तो सेलेसिया का नेफ्रॉन्स पे प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है. तो अनेक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका लीवर की हेल्थ के ऊपर भी एक्शन है, किडनी की हेल्थ के ऊपर भी एक्शन है, और कुछ आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट पे जो काम हुआ है उससे लगता है कि इनमें कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन भी है. सो क्लिनिकली एंड एक्सपेरिमेंटली वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत स्टडी हुआ है, एंड दीज हर्ब्स विच आर टेकिंग केयर ऑफ डिस्टर्ब ब्लड शुगर लेवल and disturb lipid profile, they also have caring effect
for the health of the vital organs like kidney, liver, and heart, and also of retina, जो रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए ये जो डायबिटीज के द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, उसके ऊपर भी इनका प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव इफेक्ट है. So in nutshell, जो आपने बात की कि how they are working, these herbs are working through their rasa, guna, virya and vipak, and through their combination of alkaloid जो नेचर ने उसमें प्रोवाइड किया है. तो रिसर्च के लिए अच्छा है अलग अलग एल्कलॉइड का एक्शन देखना, बट व्हेन इट कम्स टू द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन वी शुड यूज ड्रग एज ए होल. अभी यहाँ रिसेंटली वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हुआ और उसमें एक ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट आए थे. उन्होंने कहा साहब हमने मेथी से ऐसे ऐसे फ्रैक्शन को निकाल के मार्केट में लॉन्च कर दिया है जो डिसलिपिडीमिया पे काम कर रहा है, जो ब्लड शुगर पे काम कर रहा है. तो मैं तो सभी श्रोताओं को यही कहूंगा, बजाय इसके कि हम अलग अलग फ्रैक्शन की अलग अलग टैबलेट या कैप्सूल दें, इट इज बेटर वी शुड यूज आवर दीज आयुर्वेदिक रेमेडीज इन इट्स नेचुरल फॉर्म. हम क्यों मेथी के अलग अलग फ्रैक्शन को लें? हम मेथी एज ए होल को ले लें, हम तेजपत्र पाउडर एज ए होल को ले लें. तो उससे क्या है कि जो नेचुरल कम्बिनेशन है फ्रैक्शंस का इन प्लांट्स में, उसका ऑप्टिमम बेनिफिशियल इफेक्ट हमको मिलेगा और हमको अलग अलग करके फ्रैक्शंस के लेवल पे उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए. वी शुड यूज ड्रग इन इट्स टोटल फॉर्म एज ए होल. उससे क्या होता है, अगर कहीं किसी फ्रैक्शन का कोई अनवांटेड इफेक्ट है तो दूसरे फ्रैक्शन उसको काउंटरएक्ट कर देते हैं. Definitely, doctor. Actually, this was very helpful to understand. Is Ayurveda safe for patients taking conventional medications? देखिए महक जी, कहीं कोई विरोध है ही नहीं. I personally feel Ayurveda and Western conventional medicine both are complementary and supplementary to each other. उसको साथ में Yeah. आप दे सकते हैं और उसके दो तीन फायदे हैं. एक तो जो कन्वेंशनल मेडिसिन का जो एक्शन है उसको आयुर्वेद का अगर एडिशन कर दिया जाए तो उसके एक्शन को पोटेंशिएट कर देता है, नंबर वन. नंबर टू, मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग में अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं तो आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन उस एडवर्स इफेक्ट को काउंटरएक्ट कर देता है. और तीसरी बात, मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग के साथ जब आयुर्वेद को आप ऐड कर देंगे तो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग की रिक्वायरमेंट भी थोड़ा कम हो जाएगी. अब कहीं कहीं कभी कभी किसी में कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो तो बेहतर यह होगा कि वेस्टर्न कन्वेंशनल मेडिसिन और जब हम साथ में जो आयुर्वेद सपोर्टिव लगा रहे हैं वहाँ, तो उसमें थोड़ा कुछ 1 घंटे का गैप कर देना चाहिए. तो कहीं कोई रिस्क नहीं है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होने का. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बोथ कैन बी एडमिनिस्टर्ड combinedly in combination to have a synergetic effect and to counteract the adverse effect of synthetic drug and to reduce the dose of modern synthetic drug. थोड़ा गैप उसमें कर देना, 1-1 घंटे का गैप कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब इट डिपेंड अपॉन विजडम ऑफ द फिजिशियन. अगर पेशेंट अर्ली ऑनसेट का है, अर्ली स्टेज है डिजीज की, उसकी कफज प्रकृति है, तो प्रकृति के हिसाब से और डिजीज की स्टेज के हिसाब से अकेले आयुर्वेद से भी आप मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट एक्यूट स्टेज में है या क्रॉनिक स्टेज में है और उसमें काफी बीटा सेल डिस्टर्ब है ना, वो डैमेज हो गए हैं और हमको लगता है कि अकेले हर्बल एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा, तो वहां हमको मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग के साथ कंबाइंडली भी उसको दे सकते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि दैट डिपेंड अपॉन विजडम ऑफ द फिजिशियन. लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. Definitely. So, how long does it take to see results of Ayurvedic treatments? अब देखिए, जहाँ कई लोगों ने डिफरेंट सेंटर पे अपनी अपनी क्लिनिकल स्टडीज करी हैं, वो चाहे टैबलेट पे हो, चाहे वो डिकॉक्शन पे हो, चाहे आशा वरिष्ठ फॉर्मुलेशन पे हो, तो अधिकतर कई जगह 3-3 महीने का मैंने देखा है कि ड्यूरेशन रखते हैं. पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी थीसिस का भी होता है तो कहीं 2 महीना कहीं 3 महीने का ड्यूरेशन रखते हैं. तो जनरली 2 to 3 मंथ. लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि ऑल द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज आर नॉट सिमिलर. The treatment depend upon stage of the disease and prakriti of the patient.
तो अगर अर्ली ऑनसेट है, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, तो मैं मानता हूं कि 1 मंथ से भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। वो अलग बात है कि टू हैव ए बेटर कंट्रोल हमको उसको 2 महीना या 3 महीना भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर बिगिनिंग की अवस्था है, अर्ली ऑनसेट है ना, तो वहां पे आप 1 महीने में भी रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि 1 से 3 महीना उसमें आपको रिजल्ट, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाता है। Got it, doctor. So, my next question to you would be, without tricking myself, can I find out if I am a pre-diabetic or borderline or diabetic? And also, is there a diagnostic tool that I can use for that? अब देखिए, जब ये आयुर्वेद शास्त्र लिखा गया हजारों साल पहले, तब तो ये सिस्टम ही नहीं था कि आप प्रिक करिए और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करिए या लिपिड लेवल मेजर करिए। पूरा का पूरा आयुर्वेद में जो डिस्क्रिप्शन है, दैट इज बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम। इसलिए साइन एंड सिम्टम के आधार पर भी जो है वो डायबिटीज रिस्क स्केल जो है डेवलप किया गया है, जिसमें पेशेंट की एज क्या है, क्या उसकी कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उसको कोई एसोसिएटेड डिजीज लाइक हाइपरटेंशन है, वेदर ही हैज बीन टेकिंग स्मोकिंग और एल्कोहल, और उसको वेट गेनिंग रिसेंटली हो रहा है, या उसको जो है रिसेंटली उसने ऐसा नोट किया कि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी में कमी आ रही है, या उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब है, मॉर्निंग अवेकनिंग लेट हो रही है, दिन में भी सो रहा है, तो ये जो है, या उसके शरीर पे मक्खियां बहुत बैठ रही हैं, या यूरिन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चींटियां लग रही हैं, या उसके नमनेस हो रही है लिम्स में, या उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो ये जो सब सिम्टम्स हैं, इसके आधार पे जो है डायबिटीज रिस्क फैक्टर स्केल डेवलप किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये Zandu.com पर अवेलेबल भी है। उसमें तीनों तरह की स्टेज का डिस्क्रिप्शन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज। इन द बिगनिंग देयर इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, देन आप उसको उस लेवल पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आगे प्रोग्रेशन डिजीज का अरेस्ट किया जा सकता है। वहां आप नहीं देख पाए, पेशेंट प्री डायबिटीज में चला गया, अगेन यू कैन टेक डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड मैनेजमेंट, और पेशेंट को फुल ब्लून डायबिटीज नहीं होगा। तो ये जो डायबिटिक रिस्क स्केल है जो Zandu.com पर अवेलेबल है, आप इसके थ्रू खुद स्कोर देख करके वो आपको बता देगा कि आप इस समय मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है, या प्री डायबिटीज में है, या डायबिटीज में है। उसका डिटेल लिंक का आप श्रोताओं को दे दें तो उनको सब काफी यूजफुल रहेगा। Definitely, doctor. So, what dietary recommendations does Ayurveda offer for diabetes? अब देखिए, आयुर्वेद में तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक ट्रायंगुलर है। सबसे ऊपर डाइट कंट्रोल है, एक तरफ एक्सरसाइज है और एक तरफ ड्रग है। आपने बहुत अच्छी बात कही महक जी कि डाइटरी रिकमेंडेशन आयुर्वेद ने क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेन एंड फ्लावर की बात करें तो आयुर्वेद का बहुत जोर जो है दैट इज ऑन बार्ले, जौ को आप ओवरनाइट त्रिफला के पानी में भिगा दीजिए और सुबह उससे फिर प्रिपरेशन बना लीजिए। अपूप की बात कही है, जौ का केक वगैरह, जौ का आटा यूज करिए। तो जौ की बहुत महिमा आयुर्वेद में गाई गई है। श्री प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की बात करी, तो जितना पिछली बार उसको मिलेट ईयर भी डिक्लेयर किया, तो ये जितना भी ये श्री अन्न है, मिलेट है, जिसमें जौ है, बाजरा है, कोदो है, पहाड़ में इसको उत्तराखंड में देखिए रागी कहते हैं, सॉरी मंडवा कहते हैं, रागी तो साउथ में कहते हैं, और ज्वार है। ये सब जो है इसमें कैलोरी भी कम है, पेट भी जल्दी भर जाता है, न्यूट्रिशन भी पूरा मिलता है, तो ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। तो बाजरा और जो दूसरे मोटे अनाज हैं मिलेट, ये सब कोदो, ज्वार, ये सब इसमें बहुत उपयोगी हैं। हम इसकी और बात करें दालों की, तो जैसे मूंग की दाल है, और ये गैथ यहाँ पहाड़ों में बहुत यूज होती है, ये भी इसमें बहुत अच्छी है, एंड अरहर है, दैट कैन बी टेकन। फलों की बात करें तो अमरूद है, जामुन है, एंड अनार है, ये इसमें बहुत अच्छा है, फालसा है। सब्जियों की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि चचिंडा है, लौकी है, करेला है, मेथी है, हरी सब्जियां जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो इसमें बहुत अच्छी हैं। और जो किचन के जो मसाले हैं,
जिसमें अदरक है, अगेन मेथी, जीरा, काली मिर्च, हींग, दालचीनी, तेजपात, ये सब जो है, हल्दी, लहसुन, ये सब इसमें नोन, इनका ब्लड शुगर के ऊपर एक्शन नोन है, प्रूवन एक्शन है। इन सब को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो मसाले भी और सब्जियां भी, और विशेष रूप से करेले का उपयोग, करेले का बीज खास तौर से कभी ना फेंकें, सब्जी के साथ उसको फिर मिक्सअप कर दें। तो इन सब का इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है। अगेन मैं फिर कहूँगा कि करेला, जामुन, मेथी एंड गुड़मार, देन ये जो इसको मधुनाशिनी भी कहते हैं, चिरायता, दारू हरिद्रा, कुटकी, ये सब जो है, एंड सप्तरंगी, सेलेसिया, ये हर्ब्स भी जो है, ये विभिन्न प्रकार से आप डाइटरी रिकमेंडेशन इसमें बताई गई है। लाइफ स्टाइल की भी हम बात करें तो कभी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, योग को कभी ना भूलें। अनेक योग आसन है, जैसे त्रिकोणासन है, योग मुद्रा है, पश्चिमोत्तासन है, भुजंगासन है, पवन मुक्तासन है, ये सर्वांगासन है, ये जितने अर्धमत्स्येंद्र आसन है, ये जितने भी आसन हैं, इनका बहुत अच्छा एक्शन है। इंसुलिन के ऊपर भी रिलीजिंग एक्शन है, और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, उसको ये बढ़ा देता है। जो हम वॉक की बात करते हैं, आयुर्वेद में कहा है रोज प्रमेह के रोगी को 100 योजन चलना चाहिए। 100 योजन, 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। तो आप देखिए कि वॉकिंग के ऊपर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। जो मजदूर टाइप के लोग हैं उनसे कहा आप कुआं खोदिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे कहा कि आप अपने अपने रिलीजियस टेक्स्ट का पाठ करिए। हिंदू है तो गीता पढ़े, रामायण पढ़े, इस्लामिक फेथ का है तो कुरान का पाठ करें, क्रिश्चियन है तो बाइबल। इससे क्या है, जब हम अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना रहता है। वी आर अवे फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, टेंशन, वरी, इसका बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज के एज ए इटियोलॉजिकल फैक्टर के रूप में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो भी लाइफ स्टाइल की हम जब बात करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। शवासन है, ध्यान है, एंड प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसकी बहुत यूटिलिटी है। एंड दिस कपाल भाती एंड बी ब्रीदिंग, जिसे हम भ्रमरी प्राणायाम कहते हैं। पंचकर्म का यूज करना चाहिए। अभ्यंग है, मसाज, उससे क्या है कि सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मसल रिलैक्स रहते हैं। इसमें जो है फ्लेबिनेस भी एक इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है, जिसमें शरीर शैथिल्य इसको कहा है। तो मसाज वगैरह से और ये अच्छा रहता है। स्वेदन करते हैं, उससे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं थ्रू स्वेटिंग, क्योंकि इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग भी इसका एक लक्षण है। तो पंचकर्म के जो प्रोसीजर हैं उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए ओवरऑल हेल्थ के लिए, और स्पेशली ब्लड शुगर और फैट मेटाबॉलिज्म के मैनेजमेंट के लिए। Definitely, doctor, for sure. So my next question to you would be: there are so many information available, which is in abundance. So can you help us with some guidelines such as diet, exercise, medicines, and herbs that can be used? महक जी, जितनी बातें हमने अभी तक करी, डायबिटीज़ की इटियोपैथोलॉजी से रिलेटेड, पैथोजेनेसिस से रिलेटेड, डाइटरी रिकमेंडेशन, लाइफ स्टाइल रिकमेंडेशन, ये सब की सब, और जो आपने अभी योग की बात करी, ये सब बहुत डिटेल में एक डायबिटीज़ ई बुक ये झंडू इमामी ने तैयार की है, जो झंडू.com पर अवेलेबल है। उसका लिंक आप अगर श्रोताओं को बता देंगे या उनको भेजने की व्यवस्था कर देंगे, तो उनका पूरा का पूरा इस डिजीज का एक, जिसे कहते हैं ना गागर में सागर, तो इस डायबिटीज ई बुक के थ्रू वो इस बीमारी के बारे में, डाइटरी रिकमेंडेशन के बारे में, हर्ब्स के बारे में, योग के बारे में, जो जो इसमें योगासन हेल्पफुल है, सब डिटेल में डिस्क्रिप्शन इस डायबिटीज ई बुक में अवेलेबल है। एंड द अरेंजमेंट मे बी मेड बाय इमामी झंडू टू द listeners if they desire. You can ask for their contact, and then you can send them through net. Uh, Definitely. So to receive the ebooks, you can please share your mail ID or contact number in the comments below.
That was truly extremely insightful session, Doctor. Thank you so much for your time and for sharing such detailed information. I'm sure that the audience will greatly benefit from it, and I would also like to thank the audience for being a part of this. Hope you enjoyed the session and join us in giving your feedback. With this, we would like to end the session here. Audience, please visit the zenducare.com and follow us on other social media handles for regular updates on Ayurveda and Ayurvedic lifestyle. Also, please join us on our next free live session on Ayurvedic medicinal approach to diabetes on 13th of January by Dr. Chandola. Thank you. Namaskar. Thank you, Thank you. Doctor.